Okay जी, the February March 2022 1 hour 15 minutes paper 22 and February March में एक ही variant होता है which is 2, ठीक है? And then question number 1, figure 1.1 shows how first ionization energy value across the period. Okay, construct, and this is the data given, lithium to neon, okay, across the period, and it's period 2. Clear? And you know that the ionization energy value increases from left to right. अभी देखते हैं आगे क्या है. Construct an equation to represent the first ionization energy of oxygen including the state symbol. Clear? And you know that the ionization energy value is the amount of energy which is required to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to make 1 mole of gaseous 1 plus ion. So to write down the equation, चाहे जो भी हो, आपको 1 mole लेना है gaseous atom. So it should be oxygen in a gas form, not O2, because O2 is a molecule and it must be an atom forming oxygen 1 plus in a gas form plus 1 electron. Okay? If it would be for the second ionization energy value, then 1 plus gas से 2 plus gas में चला जाता और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता. ठीक है? State and explain the journal trend of the first ionization energy value increases energy value across the period. So आप सबसे पहले लिखेंगे state करेंगे. ठीक है? So आप लिखेंगे the first ionization increases from left to right. Across the period as the electron is added or present into the same outermost shell. Okay, the nuclear distance and shielding effect remains nearly constant, but the nuclear charge increases. So ionization energy value increases. ठीक है? Whenever they ask you about the ionization energy value from left to right across the period, this is always the answer. Okay? Down the group में as the electron is present or as the electron is added into a different outermost shell, the shielding effect and nuclear distance increases, which cancel out the increase in nuclear charge. So down the group left to right, ये trend याद कर ले, and you can see the worth is around 3 marks or 3 marks कम नहीं होते, ठीक है? So ये 4 marks का इंतहा easy था. Explain why the ionization energy A in figure 1.1 does not follow the general trend in the first ionization energy across the period. ठीक है? Again, the two exceptional cases across the period में आपको पता है, एक तो बेरिलियम एंड बोरॉन का एक्सेप्शनल केस होगा पीरियड ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के दरमियान. ठीक है? डिफरेंस ऑफ सबशेल होता है. सही है? और एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के दरमियान आपके पास जो है वो दूसरा एक्सेप्शनल केस होता है. क्लियर? सो ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का पूछ रहा है कि व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज लेस although oxygen is after nitrogen. दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन. इसने कहा explain why the ionization energy value A which is for oxygen does not follow the trend. ठीक है? In the first ionization energy across the period. क्यों नहीं फॉलो कर रहा? तो आप लिखेंगे, आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए नाइट्रोजन 7
which is equals to 1s2, 2s2, although this electronic configuration is not a part of answer, but it is compulsory because this electronic configuration gives you an idea how to explain it. Okay, 1s2, 2s2, and 2p3. And oxygen 8 is 1s2, 2s2, 2p4. Okay, so आप लिखेंगे the outermost subshell of oxygen is partially filled. हम सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, which is less stable than half filled subshell of नाइट्रोजन. ठीक है, क्लियर, ये तो एक मार्क हो गया. अब आप लिखेंगे and the outermost electron is a paired electron. Which is easier to remove due to electronic or due to electronic repulsion. ठीक है, clear, and that's always the explanation between nitrogen and oxygen, between phosphorus and sulfur. Whenever there is a like the question about the difference between the ionization energy value between nitrogen and oxygen, or between phosphorus, which is 15, and sulfur, which is 16, this is same would be the explanation. ठीक है बेटा, is it clear? Now let's move forward. It says the element, sorry, uh, element E in the period 3 of the periodic table, the first 8 ionization energy values of element E are shown in table 1.1. Ionization energy, ठीक है, deduce the full electronic configuration of E. ठीक है, explain your answer. Full electronic configuration. So it is 1s2, 2s2, 2p6. How ठीक है, किस ग्रुप में है भाई? वेयर इज द बिग जंप? अच्छा, बिग जंप इज हियर. ओके, 2000 say 11,000. It means that it is present in a group 3 of the periodic table. ठीक है, अब आपको वो एलिमेंट ढूंढना है जो ग्रुप में उसका पीरियड 3 का ग्रुप 3 एलिमेंट. नाउ गो टू द, sorry, now go to the periodic table with, क्यों नहीं मूव कर रहा है? Okay, group 3, which is ये वाला 13, period 2, period 3, aluminum. That means that the element is aluminum. So they're asking about the electronic configuration of aluminum here. Aluminum, the proton number is 13. तो मैंने किस तरह figure out किया? मैंने big jump से group number figure out किया, and the period is already given. So मुझे पता चल गया कि this is basically aluminum. ठीक है, तो full electronic configuration क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Explanation क्या होगी? आप लिखेंगे there is a big jump. There is a big jump. You can use the term big jump in the ionization energy value after the removal of 3 electron. So element E is in group 3 of period
3, which is aluminum, प्रोटॉन नंबर 13। ठीक है, हम सारी बातें लिखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो 9 मार्क्स का वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई इशू नहीं होगा एंड आई एम श्योर कि दिस क्वेश्चन इज 100%. Now the question number 2, now question number 2 is about, looks like a periodicity. ठीक है, some oxides of period 3 are given below. Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Sodium is a reducing agent. ठीक है, in this define the term reducing agent. ठीक है, तो आप लिखेंगे the substance that oxidize itself by removing electrons are called, is called reducing agent. जो खुद ऑक्सीडाइज होता है बेटा वो reducing agent कहलाता है। ठीक है, write an equation for the reaction of sodium oxide with water. So yes, Na2O solid. They didn't say anything about the state symbol. So if you do not write the state symbol, perfect है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, forming NaOH aqueous. ठीक है, to balance this equation, write 2 here. Easy, clear? Next one, aluminum oxide is an amphoteric oxide found in a bauxite. Bauxite is basically is an ore of aluminum. ठीक है, जिसमें mainly aluminum oxide form में होता है। State what is meant by the term amphoteric. ठीक है, amphoteric क्या होता है? The oxides that are insoluble in water, insoluble in water, and can react with both acids and alkalis are amphoteric. ठीक है बेटा, आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है। Al2O3 is purified from bauxite in several steps. The first step involves heating aluminum oxide with an excess of sodium hydroxide aqueous. A colorless solution is formed. ठीक है, तो Al2O3 का रिएक्शन लिखना है बेटा, सॉलिड का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस के साथ। आपको याद है Na2AlOH4 एक्वस आपके पास बनता है। ठीक है, क्लियर? इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा। सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज बेसिकली फॉर्म व्हेन एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बैलेंसिंग रिक्वायर्ड, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आपको याद होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है और सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज बेसिकली फॉर्म। क्लियर? सो नेक्स्ट वन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, aluminum oxide is used as a catalyst in the dehydration of alcohol. Yes, we remember dehydration. Elimination के लिए Al2O3, SiO2, porous spot, pumice catalyst या concentrated sulfuric acid use होते हैं, if you remember. State the effect of using aluminum oxide as a catalyst in the dehydration of an alcohol. Use Boltzmann distribution curve figure to explain your answer. ठीक है, क्लियर? तो अब आप आंसर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इस फिगर में सबसे पहले तो ये मार्क करेंगे, आप लिखेंगे EA विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, इस फिगर को ऐसे यूज करना है, विदाउट कैटलिस्ट। क्लियर? और फिर आप यहां मार्क करेंगे और इसे आप लिखेंगे EA विद कैटलिस्ट। ठीक है, ये तो इस डायग्राम का यूज हो गया, दिस वन मार्क
for the using of for using this diagram. ठीक है, और इस एरिया को आप शेड कर देंगे. आप लिखेंगे Al2O3, which is the catalyst, decreases the activation energy value so there are more particles having this energy. The number of effective collision increases. Hence, the rate of reaction increases. ठीक है? That's the effect of catalyst on the rate of reaction. You have to memorize the statement about the effect of catalyst, effect of temperature, effect of pressure, effect of surface area on the rate of reaction. ठीक है? अच्छा, यही बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आपसे बोला जाता हाई टेम्परेचर पे ड्रॉ करें तो आप इसको ड्रॉ करते कुछ इस तरह करके. ठीक है, दिस इज एट हाई टेम्परेचर. यहाँ नहीं पूछा, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे पूछा है, लेकिन अगर यहाँ पूछा जाता so you draw it like this. ठीक है, थोड़ी सी पीक को नीचे करके राइट साइड पे शिफ्ट कर देना होता है पूरे ग्राफ को. बट हियर they just simply say that draw the activation energy graph. Clear? Next part, P4O6 is a white solid that has similar that has a melting point of 24 degrees Celsius. Solid P4O6 react with water to form H3PO4. Deduce the type of a structure and bonding by P4O6. अब देखो, deduce the type and a structure, type of a structure and a bonding. पहली बात ये है कि boiling point is sorry melting point is very low. Clear? और आपको याद होना चाहिए only the oxide of metal oxide का स्ट्रक्चर आपको पास पता है आयनिक स्ट्रक्चर होता है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जाइंट कोवलेंट ऑक्साइड की बात कर लेते हैं. चलें, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, SiO2. बेटा मेरा मोबाइल लाओ. SiO2. ठीक है जी, लेकर आइए. P4O क्या है भाई? P4O6 फॉस्फोरस, SO2 SO3. ठीक है, प्लस एंड देन सिंपल क्लोरीन का ऑक्साइड. नाउ दीज ऑक्साइड्स हैव अ आयनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इनके पास आयनिक स्ट्रक्चर होता है. ये कहलाता है जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर. ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर होता है सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. क्लियर? इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, क्लियर? तीसरी बात क्या है कि इस इन तीन के अंदर सॉरी these three have ionic bond. सही है. This one have covalent bond and this one have covalent bond as well. इरहान बेटा इधर इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बाहर नहीं लेके जाओ. कोवलेंट बॉन्ड as well. ठीक है बेटा. सो ये थोड़ी सी इससे रिलेटेड एक जर्नल बात थी जो मैंने आगे आपको तो टाइप ऑफ डिड्यूस द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप लिखेंगे as P4O6 have a simple molecular structure. ठीक है, there is a covalent bond present between phosphorus and oxygen. ठीक है, clear? So simple covalent structure and phosphorus and oxygen. सही है. Now it says that deduce the oxidation number of phosphorus in H3PO4.
इसकी भी कैलकुलेशन यहीं पे कहीं कर लेते हैं, तो चलो let's do it here. Now you have H3PO4 and they're asking about the oxidation state of phosphorus. Now 3 times of hydrogen, which is +1, plus phosphorus plus 4 times of -2, which is oxygen, is equals to overall charge, which is 0. ठीक है, सो ये हो जाएगा +3 प्लस फॉस्फोरस -8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, phosphorus -5 is equals to 0, phosphorus is equals to +5. So the oxidation state of phosphorus is +5. No need to do the calculation, no need to show the calculation, but I recommend always do this calculation. ठीक है, सही है बेटा. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं when P4O6 is heated with oxygen and it form P4O10 solid. सही है जनाब. Enthalpy change value is given. Always mark the data which is given. The enthalpy change of formation का value given है P4O10 की. Calculate the enthalpy change of formation of P4. ठीक है जनाब. Let's rewrite the equation again. P4O6 plus 2O2 forming P4O10. आज सुबह बहुत डिटेल में करवाया, ठीक है. And the delta HR value is -372. क्लियर. ये वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा. P4O6 की फॉर्मेशन and the formation of P4O10 given है which is -3012. ठीक है. ऑक्सीजन की फॉर्मेशन वैल्यू 0, इट्स एन एलिमेंट. इसकी फॉर्मेशन वैल्यू x है. और आपको पता है डेल्टा HR फॉर्मेशन का डाटा गिवन है. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे. डेल्टा HR इज 1372 which is equals to product is -3012 minus reactant and reactant is x. ठीक है, क्लियर. सो आप जस्ट सॉल्व फॉर द x की वैल्यू आपके पास जो भी आएगी दैट्स द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ. ठीक है, सो लेट्स सी कि x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास. सॉरी बेटा, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई. दिस इज 3. सॉरी, लेट्स जस्ट डू इट. सॉरी, ये मुझे 2 नजर आ रहा था, मैंने जूम नहीं किया था ज्यादा. सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगी +3 प्लस P. किसी ने मुझे मैसेज पर बताया 4 माइनस. ठीक है, 3 to the 6 is equals to 0. ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना. 3 ऑक्सीजन 3 टाइम्स ऑफ -2. सो फॉस्फोरस -3 is equals to 0. फॉस्फोरस is equals to +3. आई एम सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट. मुझे वो 2 लगा था, सॉरी 4 लगा था. सो दिस इज +3. क्लियर. चले आगे चलते हैं. और इसका आंसर आएगा -1640. -1640. ठीक है, क्लियर. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10. आपको याद होना चाहिए P4O10 प्लस H2O क्या बनाएगा भाई. H3PO4 बनाता है. ठीक है, H3PO4. एंड आई सेड मेनी टाइम, डू नॉट मेमोराइज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हमेशा इक्वेशन को खुद से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. नाउ 4 फॉस्फोरस है तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा. ठीक है, और अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने 10 यहाँ पर आ गए और 4 4 16. तो मुझे लाजमी वाटर के साथ जो है वो 6 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. P4O10 सॉलिड है, ये लिक्विड है और इसको एक्वस लिख देंगे. ठीक है, एज द स्टेट सिंबल इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन आप फिर भी स्टेट सिंबल
लिख दिया करें, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड होगा तो ना लिखने के मार्क्स डिडक्ट होंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो गलत लिखने के भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। बट कॉमन है, P4O10 का स्टेट सिंबल उन्होंने ऊपर दे दिया है, विच इज सॉलिड, वाटर लिक्विड होता है, एंड ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्वस, सो H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज एक्वस। D part, sulfur dioxide and trioxide are found in the atmosphere. The oxidation of sulfur dioxide to trioxide in the atmosphere catalyzed by NO2. ठीक है जी, ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए. The first step of catalytic oxidation is SO2 से NO. ठीक है. Considering the equation, show how NO2 regenerated. ठीक है, आपको याद होगा ये तो पहला एक रिवर्सिबल NO से NO2 बनाना है, तो ये जो NO बनता है इन अ गैस फॉर्म, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, it reacts with oxygen in a gas form, ठीक है, and forming NO2 gas. ठीक है, याद है ये इक्वेशन? So I'm sure कि this equation. Now, NO2 can also react with unburned hydrocarbon to form photochemical smog. ठीक है, state the product of this reaction that contribute to photochemical smog. इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, ठीक है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करने के बाद जो है वो NO भी होता है, और बेसिकली NXHY करके कुछ ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, एक चीज होती है जो कि बहुत थोड़ी सी अनकॉमन सी है. ठीक है, जिसको हम परऑक्सीनाइट्राइल कहते हैं, इसको बेसिकली PAN से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, परऑक्सीनाइट्राइल कहलाता है, लेकिन एज कॉमन थोड़ा सा इसको, ठीक है. तो फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड ये दो तीन चीजें हैं, कॉमन नहीं है इतना ज्यादा जो ये पूछा जाता है, लेकिन दिस इज बेसिकली द कंट्रीब्यूटर ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. चलें जी, क्वेश्चन देखें, थोड़ा डिफरेंट सा दिख रहा है. It says figure 2.2 shows how the temperature of the atmosphere varies with height from the ground. तो हाइट जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप देखें टेम्परेचर कम होता जा रहा है, फिर एक टेम्परेचर बढ़ गया, फिर उसके बाद टेम्परेचर बहुत कम हो गया, फिर उसके बाद इट्स फॉलोइंग एट रैंडम ट्रेंड. ठीक है, the equilibrium reaction in equation 1 has delta HR which is minus 168. reaction 1 क्या है भाई? This is basically the reaction 1, equation 1. ठीक है, इसकी enthalpy change की वैल्यू दी हुई है उसने. Suggest how the position of this equilibrium differ at the height of 20 kilometer compared to 50 किलोमीटर. सही, 20 किलोमीटर पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो ये है. ठीक है, एंड 50 किलोमीटर पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ये है. ठीक है, अब आप देखें 20 किलोमीटर पे आपके पास लो टेम्परेचर है. सही है ना, 20 किलोमीटर पे टेम्परेचर लो है. बस ये की पॉइंट पूरी डायग्राम से हमें मिल रहा है. द टेम्परेचर इज लो एट 20 किलोमीटर. सॉरी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. ठीक है, for any exothermic reaction, if the temperature decreases, the equilibrium will shift towards right hand side, because the forward reaction is an exothermic reaction, and exothermic required lower temperature. ठीक है, clear? So can I say that at 20 kilometer, as the temperature is lower, as the temperature is lower, the equilibrium will shift towards right hand side, as the forward reaction is exothermic.
ठीक है बेटा, as the forward reaction is exothermic. I know कि this is a 60 marks question, बहुत ज्यादा वेटेज है इस क्वेश्चन की. एक दफा जरा टेक्निकली इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो देखें इस क्वेश्चन में ऑन दिस पेज, अगर आपको याद हो इस इक्वेशन में यहाँ वाटर भी बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है. ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा. सो वेरी सिंपल पार्ट इस पेज पे अगर यहाँ देखा जाए, वेरी सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पूछा था. ठीक है, और अगर यहाँ आ जाए एंथैल्पी चेंज का, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट ओनली फॉर 1 मार्क. Very simple question for the reaction of oxide of phosphorus with water, and then some sort of a environmental based 2 marks question. And then this is a very simple equilibrium question. You have to just understand the question about the effect of temperature. ठीक है, next part, question number 3. It says the hydrogen halide HCl, HBr, NHI are all colorless gases at room temperature. Yes, we know that HCl, HBr, NHI all are gases. ठीक है, इनकी फॉर्मेशन की इनकी फॉर्मेशन भी लिखनी है. द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना. क्लोरीन रिक्वायर्ड, fluorine can react when exothermically in a cold dark condition. Chlorine required sunlight, bromine required heating, and iodine equilibrium reversible reaction करता है on heating. ठीक है, the hydrogen halide can be formed by reacting halogen with hydrogen. Describe and explain the relative reactivity of halogen down the group when they react with hydrogen to form HCl. ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा कि going down the group the reactivity decreases. ठीक है, reactivity decreases. क्यों decrease हो रही है? As the atomic size increases, as the atomic size increases, the addition of electron become difficult, or you can say about the decrease in the electronegativity value. ये हर हैलोजन के लिए. तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं. The reactivity of halogens decreases due to increase in the ionic radius and decrease in the electronegativity value so the addition of electron becomes difficult. ठीक है बेटा, clear? Whenever you have any halogen, let's suppose you have Cl2, it's always react by forming Cl negative by adding an electron. ठीक है. Part B, HCl is a product of several different reactions. Some of these reactions are shown below. SiCl4 plus H2O HCl बनता है. NaCl concentrate sulfuric acid के साथ react करता है, HCl बनता है. बिल्कुल ठीक है. Write the equation for the reaction 1. So yes, we have SiCl4, ठीक है, reacting with H2O forming SiO2 plus HCl. अब balance करने के लिए you have to write 4 here and you have to write 2 here. Now this equation is balanced. SiCl4 की equation पूछिए. देखें, they can simply ask you write down the equation between SiCl4 and H2O, but they ask this equation by ये सारा ड्रामा करके. ठीक है, in simple asking the equation. अब सब कुछ ही तो आपको बता दिया. SiCl4 एक reactant है, water is another reactant, HCl is one of the products. So second product क्या होगी? SiO2 ही बनेगी क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही बाकी बच रहे हैं. ठीक है, so this is basically the state symbol is again not required for this equation. Now in the reaction 2, NaCl react with concentrate sulfuric acid to form HCl and NaHSO4. ठीक है,
When NaBr react with concentrated sulfuric acid, the product is bromine and SO2. Remember, this is very important. The reaction of halide ion with concentrated sulfuric acid. क्लोराइड में सिर्फ HCl और NaHSO4 बनता है. ब्रोमाइड में जो आपके पास HBr बनता है वो फर्दर रिएक्ट कर जाता है. और आयोडाइड में जो HI बनता है वो भी फर्दर 2 रिएक्शंस करता है. ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेमोराइज इट अच्छे तरीके से. ठीक है. Identify the type of reaction that occur when this. So देखें NaBr जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, सो जो पहला रिएक्शन होता है दैट लाइज इन अ कैटेगरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन. वैसे बेसिकली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन करता है. ठीक है. सो रेडॉक्स और एसिड बेस दोनों रिएक्शन होते हैं इसमें. क्लियर. लेकिन जब NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके HCl और NaHSO4 बना रहा है तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी में आता है. ऑल्दो इट्स नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन नहीं लिख सकते यहाँ पर क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है. यहाँ पर HCl बन रहा है. सो इट इज एन इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है. क्लियर. एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली या आप लिखेंगे ब्रोमाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड बेस. देखिए नहीं, एसिड बेस रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता. बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, वो 2-3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. और बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज ये होती हैं कि आइदर द रिएक्शन इज बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन और इट कुड बी अ रेडॉक्स रिएक्शन. दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं. क्लियर. अब एक्सप्लेनेशन में की पॉइंट यह है कि दे जस्ट ट्राइंग टू आस्क व्हाई दिस वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाई यू हैव सम एडिशनल प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हो रही है. एडिशनल प्रोडक्ट कौन सी कि ये फर्दर रिएक्ट करके SO2 और Br2 क्यों बना रहा है. सो उसका सबसे मेन 2 रीजन है. मतलब you can explain it in a 2 way. Either you can explain that the Br negative is a stronger reducing agent as compared to Cl negative. ठीक है. So it can further reduce sulfuric acid to sulfur dioxide. एक तो ये है कि आप ये बता देंगे Br negative stronger reducing agent है, या आप ये लिख सकते हैं कि sulfuric acid is a stronger oxidizing agent as compared to Br negative. लेकिन मेरे ख्याल में the first explanation I think is more valid. So हम लिखेंगे Br negative is a stronger reducing agent as compared to Cl negative. So it can reduce H2SO4 to sulfur dioxide and itself required नहीं है लेकिन आप लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता. Itself getting oxidized to Br2. ठीक है. याद है ना, the reducing power of halide increases down the group. That's why Br negative में further reaction होता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. और I negative में H2S बनता है which is hydrogen sulfide. Which is hydrogen sulfide. कैलकुलेटर लाके दो मेरा. ठीक है. When heated with a Bunsen burner, HCl does not decompose, whereas HI form hydrogen and iodine. ठीक है. Clear. तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात पूछ रहा है. आपको याद होगा मैंने लेक्चर में कुछ इस तरह लिखा था, HCl, HBr and HI. ठीक है. So going down the group, कैलकुलेटर लेकर आओ. कहाँ रखा है आपने, ये लेकर आइए. So going down the group, as the bond length increases, the bond energy decreases. So can I say that HCl, the bond length is less, so the bond energy is more. Can I say that the bond in HCl is stronger
as compared to the bond in HI due to a smaller ionic radius of Cl, chlorine. ठीक है, क्लियर? सो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी. क्लियर? इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं था. The hydrogen halide dissolve in water to form a strong brosted lauric acid. The concentration of a strong acid can be determined by titration. ठीक है? State what is meant by the term strong brosted and lauric acid. ठीक है? So आप लिखेंगे the acid that completely dissociate, completely ionize in water giving a large amount of H positive ions are called strong brosted and lauric acid. देखो दोनों बातें आ गई. Completely ionized से हमने strong को define कर दिया और H positive ion giving H positive ion का मतलब H positive ion donor. इससे हमने explain कर दिया कि आपके पास जो है वो ये brosted and lauric acid है. ठीक है, clear? Now the next one, read the question. It's about the titration curve. On figure 3.8, sketch the pH titration curve produced when 0.1 mole per dm cube sodium hydroxide is added. Burette से क्या ऐड कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. यानी आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक सॉरी जो आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क है उसमें क्या है? टाइट्रेशन फ्लास्क में आपके पास HBr है, which is a strong acid. ठीक है, और HBr क्या है? HBr आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, so the first graph is basically a strong acid and a strong base और second graph जो है वो strong acid weak base का. सही है. अब देखो strong acid strong base, मैं एक दफा आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा ताकि हम जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही एक दफा रिवाइज कर लेते हैं इसे. इफ यू रिमेम्बर हाँ हाँ, मतलब कहाँ टाइट्रेशन का सेव किया है. ओके, ये रही टाइट्रेशन का फाइल. देखें, इफ यू रिमेम्बर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में स्टार्ट होता है आपका pH 1 पे. ठीक है, क्लियर? हमें ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है जिसपे ये हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और ये एंड हो जाएगा अराउंड 13 14 सम पॉइंट पे. ठीक है, एंड 0.7. सो यू हैव टू कॉपी दिस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला. HClO HBrO इज द सेम थिंग. ठीक है, आपसे शायद HCl और HBr आपसे हो सकता है HBr से रिलेटेड पूछ लिया जाए. ठीक है, उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा. ठीक है, और ग्राफ तकरीबन कहीं पे 8 9 10 पे आप जाके फिनिश कर देंगे और स्टेट एंड पॉइंट जो pH है वो लेस देन 5 पर आएगी. ठीक है, लेस देन 7 पर आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड. क्लियर? सो यही आप हो सकता है आपसे वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ पूछ लिया जाएगा तो ये स्केच करना आपको आना चाहिए एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस. ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ. सो अब देखें, मुझे एक सिर्फ क्वेश्चन ये है
कि at what volume I have to draw this straight line. तो देखिए HBr और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 1:1 में रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम गिवन है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे, देखें कैलकुलेट कैसे करना होता है। क्या कैलकुलेट कैसे करना है कि आप इसमें से किस वॉल्यूम पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपने HBr लिया है, HBr का वॉल्यूम भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HBr आप निकाल लीजिए, which is equals to concentration, which is 0.1 multiplied by volume, which is 25 over 1000 cm cube में dm cube में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.5 into 10 power minus 3, ठीक है। HBr और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मोलर रेशियो इज 1:1, ये इक्वेशन से मुझे पता है, ठीक है। NaBr plus H2O बनता है ना, जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वैसे HBr HI सब कुछ सेम होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेटा आपके पास आ जाएंगे, विच इज 2.5 into 10 power minus 3। अब आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। यू नो दैट C is equals to N over V, तो वॉल्यूम निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल विच इज 2.5 into 10 power minus 3, ठीक है। क्लियर, आपके पास जो आंसर आएगा विच इज 0.025 आएगा, विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये डीएम क्यूब में आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको जो स्ट्रेट लाइन बनानी है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर बनानी है। अब अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें मोलर रेशियो 1:1 ना हो, लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, तो आप 1:2 यूज करेंगे, आपके पास सेम कैलकुलेशन होगी। ये कैलकुलेशन अपने पास सेव कर लीजिएगा, दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा समवेयर अराउंड हियर, आप यहां से लेके जाएंगे इस ग्राफ को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और 25 के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्केल रख के बना लीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है सो आई एम जस्ट डूइंग इट, ठीक है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ भी 1:1 है, अमोनिया और HBr इज 1:1, ठीक है। सो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस्ड, ठीक है। 25 के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसे खत्म कर देंगे समवेयर। सो दीज आर द 2 टाइट्रेशन का, यू कैन मार्क द एंड पॉइंट हेयर, यहाँ पर आप 7 पे मार्क कर दीजिएगा, एंड पॉइंट लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, अगर मार्क होगा तो मार्क दे देगा, और इस स्ट्रेट लाइन का मिड आ रहा है समवेयर हेयर, तो आप यहाँ पर एंड पॉइंट मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। और एंड पॉइंट पे इसकी पीएच को भी मार्क कर दीजिएगा आप, सही है, 10, 11 व्हाटएवर इट इज। सो दिस इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइट्रेशन कर्व बिल्कुल इसी तरह से, ओनली चेंज जो आएगा वो एग्जाम्पल में आएगा। इफ इट वुड बी 1:2 तो आप 1:2 लगा के वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कौन सा कैलकुलेट होगा बेटा, किस वॉल्यूम पे आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, दैट्स द ओनली कैलकुलेशन, वन लाइनर कैलकुलेशन एक तरह से कैलकुलेटर पे। अदरवाइज चूंकि ये टॉपिक जो है वो अभी ऐड हुआ है, इसलिए ये जो है वो इसी तरह का पूछा जाएगा, सिंपल इक्वेशंस के साथ, ठीक है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आई विल शेयर दिस पेपर। HBr रिएक्ट्स विद प्रोपीन टू फॉर्म 2 ब्रोमो एल्केन, सही है जनाब, एक ये वाला और एक ये वाला। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ HBr एंड प्रोपीन टू फॉर्म द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब मुझे बताएं भाई, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसमें से कौन सी होगी। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो होगी जहां पर यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा, am I right? Hydrogen must be added on the carbon that already contain more hydrogen. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म को कंप्लीट करने में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें कहाँ क्या चीज ऐड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, इसके लोन पेयर जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव। फिर आप अटैक दिखाएंगे डबल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, और आप दिखाएंगे कि ब्रोमीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए और अलग हो गया, सही है।
and then you draw this hydrogen, ठीक है, and hydrogen, and then you have to all ये नया वाला हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया, and you have to draw a positive charge here, क्योंकि आपने जहां ब्रोमीन ऐड करना है आप पॉजिटिव चार्ज वहीं पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखें Br नेगेटिव, ठीक है, और इसका अटैक दिखा दें इज पॉजिटिव चार्ज, और फाइनल प्रोडक्ट आप बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, उसी फॉर्मेट में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डिजाइन भी सेम रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। Now you can see this is the major. अगर वो माइनर प्रोडक्ट कहता तो मैं पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऐड करता इस वाले कार्बन पे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज लगाता लास्ट वाले कार्बन पे, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द एडिशन ऑफ मैकेनिज्म। Clear? Explain why the two carbocation two bromoalkanes are not produced in an equal amount. तो आप लिखेंगे कि जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट में जो कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, दैट कार्बोकैटाइन इज बेसिकली अ स्टेबल कार्बोकैटाइन, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप, ये जो ये कार्बोकैटाइन है ना बेटा, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, सो दिस इज अ कार्बोकैटाइन। तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट में जो कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है वो स्टेबल फॉर्म होता है, इसीलिए वो 90% मेजर प्रोडक्ट मिलती है, बाकी माइनर प्रोडक्ट मिलती है आपको, ठीक है। क्लियर? तो आप आंसर लिखेंगे दी कार्बोकैटाइन in a major product is a secondary carbocation which is more stable due to the presence of two alkyl groups, ठीक है, या टू, बल्कि इसको इस तरह लिखें, टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट क्यों स्टेबल होती है, कार्बोकैटाइन क्यों स्टेबल होता है, आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये काम कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं उतना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, आपका आयन स्टेबल हो जाता है। मैं एक दफा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा बेटा, देखें, दिस इज बेसिकली अ कार्बोकैटाइन, ठीक है, एंड दिस इज अनदर कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन पॉजिटिव। ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है, दिस आर, यहाँ पे अगर एक आर ग्रुप लगा हुआ है एंड टू हाइड्रोजन, यानी ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है, एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। तो देखो ये आर ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ पुश करता है। सो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन में कितने आर ग्रुप लगे हुए हैं, टू आर ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करने का मतलब ये होता है कि मेकिंग दिस चार्ज लेस पॉजिटिव। When the carbocation become less positive, it means that it become more stable. जब ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट देगा। दिस इज बेसिकली द थीम ऑफ दिस स्टेबल कार्बोकैटाइन। क्लियर? एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा, आप एक्सप्लेनेशन में ये वर्डिंग कॉपी पेस्ट करके आ जाइएगा, ठीक है। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसने कहा the reaction of CH3 CH2 Br and sodium hydroxide is different depending on
वेदर वाटर और इथेनॉल इज यूज। ठीक है जनाब, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो तरह के रिएक्शन होते हैं, आपको याद है। कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर की प्रेजेंस में होगा, हैलोजन अल्केन से रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज 1 2 3, तो आपके पास जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी बेटा वो होगी CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट होगी, इथेनॉल में होगा तो प्रोडक्ट होगी CH डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके पास यहां पर बनेगी NaBr, है ना। Br यहां से निकला और NaOH से निकला, और यहां पर आपके पास जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी वो H2O निकलेगा, आपके पास एलिमिनेशन हो रही है, ठीक है। प्लस सोडियम का NaBr बनेगा, ठीक है। क्लियर। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर इन दो रिएक्शन की कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन भी पूछी जा सकती है बेटा, ठीक है। सो याद रखिएगा कि कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनानी है। लेकिन अगर आपके पास CH3 CH2 CH2Br का रिएक्शन हो रहा है NaOH एक्वस के साथ, तो कंप्लीट इक्वेशन ये होगी CH3 CH2 CH2OH प्लस NaBr, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्वस होगा, अगर ये एथेनॉल होगा तो आपके पास प्रोडक्ट में एल्कीन बनेगा, H2O बनेगा और NaBr फॉर्म होगा, एल्कीन H2O और NaBr, ठीक है। पार्ट 3 दोबारा से बता रहा हूं, जब आपके पास हैलोजन अल्केन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं बेटा, तो दो डिफरेंट कंडीशन में रिएक्ट करते हैं। व्हेन दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Br की जगह OH आ जाता है, अल्कोहल बनती है, बाय प्रोडक्ट में NaBr बनता है। When they react in the presence of solvent as the ethanol, elimination reaction होता है, एल्कीन प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और जो बाय प्रोडक्ट होती है वो NaBr और H2O होती है। मैं ये वाली NaBr वाली भी इक्वेशन सॉरी लिख देता हूँ कहीं। सो हम इसको यहाँ पर, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन होगी CH3 CH2 CH2Br प्लस NaOH इन एथेनॉल। आई होप कि आपको ये रिएक्शन याद हो, अल्लाह करे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr और H2O निकला है आपके अल्कोहल में से, ठीक है। सो दीज आर द टू बैलेंस्ड इक्वेशन। हो सकता है इस रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन आपसे पूछ ली जाए ऑर्गेनिक में, सही है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एंड देन वी आर नियरली एट द एंड ऑफ दिस पेपर। तो आसान सा टास्क रहा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड J and K आर फाउंड इन प्लांट ऑयल। ठीक है जनाब, सबसे पहले मुझे कोई कंपाउंड गिवन होता है तो मैं देखता हूं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। तो यस, आई हैव एन एल्डिहाइड, ठीक है। आई हैव कीटोन एंड इट्स अ मिथाइल कीटोन, अगर आपको याद हो, सही है। तो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, कीटोन जब भी होगा मैं चेक करूंगा मिथाइल कीटोन तो नहीं है, ठीक है। एंड इट्स अल्कोहल, सही है। इन अ सिमिलर वे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कीन, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने सबको मार्क कर दिया। नेक्स्ट, कंपाउंड सॉरी कंप्लीट टेबल 4.12 स्टेट वेदर what you observe when J is this one, ठीक है। 2,4 DNPH के साथ J रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, because it has an aldehyde group, so it react and it give red orange precipitate, ठीक है। red orange precipitate, ठीक है। PPT क्यों? because it has a aldehyde group present. टॉलिन्स रिएजेंट के साथ J रिएक्ट करेगा, yes it will react because it will form a silver mirror because it has silver mirror because it has an aldehyde group present. ये aldehyde लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। सोडियम मेटल के साथ J रिएक्ट करेगा, yes
बिल्कुल करेगा, बिकॉज इट हैज OH ग्रुप प्रेजेंट, सो इट विल गिव एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों देगा? बिकॉज ऑफ अल्कोहल। आपके पास OH है, याद रखिएगा सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑल टाइप ऑफ OH। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ओनली रिएक्ट विद कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ओनली रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी दिन इसको एक डिटेल में एक जगह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, J has two optical isomers, yes, because J have a chiral carbon, this one is a chiral carbon, so it has two optical isomers। आपको ड्रॉ करने हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आप टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल शेप हमेशा इसी तरह आपको ड्रॉ करनी है। सी, ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा, ये डैश लाइन इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, और ये एज इस तरफ चला जाए। सही है, क्लियर। अच्छा, ऊपर हम लगा देते हैं, क्या लगाएं, CH3 लगा देते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन पे हम लगा देते हैं CHO, तो ये हो जाएगा OHC, यानी CHO ही लगा हुआ है। ठीक है, और एक क्या था हमारे पास, एक मिथाइल कीटोन था, सो COCH3 यहाँ लिख देते हैं, COCH3। और एक और क्या था भाई, OH हो गया, CH3 हो गया, CHO हो गया, COCH3। ठीक है, OH यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ इट। हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमेशा इसी तरह ड्रॉ करने हैं, दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो चार ग्रुप लगे हुए हैं उन चार ग्रुप्स को लगाना है। कॉमन एरर क्या है? कॉमन एरर ये बेटा कि आप इसको इस तरह लिख दें। This is wrong. Why? Because hydrogen is not bonded to carbon. The oxygen is bonded to carbon in OH. ठीक है, और यहां भी आप इसको OH ही लिखेंगे। इसको आप इस तरह लिखोगे तो ये हो जाएगा गलत। सही है, तो इसको OH इसी तरीके से आपने लिखना है। ठीक है, क्लियर? आई एम श्योर द पॉइंट इज क्लियर एंड यू कैन ड्रॉ दिस 3D शेप। ये 3D के अलावा एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां तो उसने लिख दिया है 3 डायमेंशनल, अगर ना भी लिखा हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज इन अ 3D शेप। ठीक है, नेक्स्ट क्विकली वाइंड अप करते हैं। इसने कहा K इज यूज्ड टू मेक एन एडिशनल पॉलीमर perspex, कोई प्रोडक्ट है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन लगा हुआ है। सिंथेसिस ऑफ perspex इज शोन बिलो। ठीक है जनाब। Identify L, state the condition required for this reaction। Identify L, L में क्या फर्क आ रहा है बेटा? आप देखो HH अपनी जगह है, डबल बॉन्ड अपनी CH3। Now this one is getting converted into an ester। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में जा रहा है? एस्टर में जा रहा है, ऐसा है ना। और कौन से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा? तो आपको नजर आ रहा है इसका OH निकलेगा और उसकी जगह पर आ रहा है OCH3, यानी जो अल्कोहल होगा वो होगा CH3OH। मेथनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं। देखेंगे O था, OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, और ये बना रहा है ये C डबल बॉन्ड OOCH3, ये बना रहा है ना प्रोडक्ट। तो फॉर श्योर किस अल्कोहल से रिएक्ट किया होगा इसने? CH3OH के साथ। इसका H गया, इसका OH गया और ये जाके लिंकअप हो गया। ऐसे ही है ना। सो दिस इज कंडीशन। हीट करेंगे आप, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। स्टेरिफिकेशन में ऑलवेज H2SO4 इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, concentrated sulfuric acid is always used as a catalyst in a esterification reaction। उसने कहा draw one repeat unit of this polymer perspective। K से पॉलीमर बन रहा है, ठीक है ना, K is this one। अब इसका रिपीट यूनिट बनाना है, तो आप देखें these are the two carbons bonded to a double bond। इन दो कार्बन को डिस्प्लेट फॉर्म में लिख दीजिए। The first carbon have two hydrogen, ऊपर नीचे लिख दिए। The second carbon have COOH, ऊपर लिखा। सॉरी, नहीं, M से एडिशन पॉलीमर बन रहा है ना, तो M का लिखना पड़ेगा COOCH3। ठीक है, और नीचे लगा हुआ है CH3।
यहाँ एक लाइन बनाई, यहाँ एक लाइन बनाई और ब्रैकेट लगा के एन लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द रिपीट यूनिट फॉर्म। सही है। उसने कहा यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2, ठीक है, एंड सजेस्ट हाउ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एन एंड वुड डिफर। दोनों डिफर कैसे होंगे, एम एन पर्सपेक्स। अच्छा, एम में क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, एम में और इसमें डिफरेंस क्या है, द ओनली द डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एम में आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देखिए whenever you have esterification you have both option, either you can write heat or heat in the reflex, दोनों लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। use information from 4.2 suggest how the infrared spectrum of M differ from the polymer। अब आपको पता है M में डबल बॉन्ड है और पॉलीमर में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपके पास जो है वो इनका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड का स्पेक्ट्रम कहां पर आ रहा है, अराउंड 1500, ये वाला, ठीक है। सो आप लिखेंगे कि पीक एट वेव नंबर 1500 से लेके 1680 नैनोमीटर is present in M due to carbon double bond carbon which is not present in the polymer perspex। ठीक है बेटा, that's the only thing, बस सिर्फ आपको ये वाली पीक को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो सारे सिग्नल सेम होंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड का डिफरेंस होगा। क्लियर। लास्ट पार्ट ऑफ दिस, K can be made from propanol in a 3 step synthesis, ठीक है जनाब। प्रोपेनॉन से 1 2 3, ठीक है जनाब। कंपाउंड नाइट्राइल बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एलिमिनेशन कर दी, ठीक है जनाब। स्टेप 1 में क्या हो रहा है बेटा, देखो आपके पास स्टेप 1 में कीटोन है और कीटोन हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में जा रहा है। तो इसके लिए रिएजेंट अगर आपको याद हो कि इसका रिएजेंट क्या होता है, के सी एन होता है, ठीक है। और ये के सी एन हमेशा जो है वो इन एथेनॉल होता है। इसने रिएजेंट पूछा है लेकिन हम एथेनॉल भी लिख देते हैं, के सी एन इन एथेनॉल। टाइप ऑफ रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। रिएजेंट सेकंड में अगर आपको याद हो तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 एक्वस, ठीक है। और ये जो रिएक्शन का टाइप होता है ये हाइड्रोलिसिस होता है। स्टेप 3 में आप देख रहे हैं OH और H जा रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो बेटा इसकी जगह, और डिहाइड्रेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, वी डन विद दिस पेपर। आप देखें इस डाटा की और कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी, इवन द वी हैव सीन द पीरियोडिक टेबल 1, ठीक है। सो वी डन विद दिस वन एंड वी विल do the next paper in next class. If you have any question you can ask right now.